ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 12ویں جماعت کے نتائج کا کیا اعلان، 65% رہا نتیجہ۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے نئی کالونی بہرار میں اضافی کوارٹرز کی تعمیر کا رکھا سنگ بنیاد۔ پچپن راشٹریہ رائفلز نے پلوامہ کے نوجوانوں کے لیے مکسڈ مارشل آرٹس میں 2 روزہ تربیتی پروگرام کا کیا آغاز، نوجوانوں کی بہتر صحت اور ذہنی تناؤ سے دور رکھنے کے لیے اقدام۔ اور خراب موسم کے سبب کوکرناگ میں سیاحتی سرگرمیاں متاثر، سیاحت سے جڑا روزگار متاثر، تاجروں میں تشویش کی لہر۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کریں گے 12ویں کے نتائج کی۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال پاس ہونے کا مجموعی تناسب 65% ہے۔ سن 2023 کے اعداد و شمار کی اگر بات کریں تو کل طلبہ کا رجسٹریشن ہوا تھا 1,27,636، جن میں سے 82,441 طلبہ پاس ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر پاس فیصد 65 رہا، جبکہ لڑکیوں کا پاس فیصد 68 ہے۔ بارہویں کلاس کے ٹاپر شاہد منظور کو ان کی شاندار کامیابی پر اساتذہ اور اسکول انتظامیہ نے مبارکباد دی۔ بڈگام کے رہنے والے شاہد منظور نے سائنس سٹریم میں ٹاپ کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان کی کامیابی پر ان کا اسکول میں آج شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا اور انہیں جموں کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں سے قریب 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع سدھو گاؤں کی رہنے والی بینائی سے محروم انشا مشتاق نے 12ویں جماعت کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ پیش تفصیل۔ سدھو شوپیاں میں ایک احتجاج کے دوران کھڑکی سے مشاہدہ کرنے والی انشا مشتاق پیلٹ گن سے نکلے پیلٹ کا شکار ہونے کے بعد بینائی سے محروم ہو گئی تھیں۔ سن 2016 میں کشمیر وادی کے اندر بھڑکے تشدد پر قابو پانے کے لیے استعمال کیے جانے والے پیلٹ بندوق کا شکار ہونے کے بعد کم عمر انشا مشتاق مکمل طور سے نابینا ہونے کے باوجود 12ویں جماعت کے امتحان میں اچھے نمرات سے کامیاب ہو گئیں۔ واضح رہے کہ آج شام کے وقت کشمیر میں 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج جاری کیے گئے۔ انشا مشتاق نے 12ویں جماعت کے امتحانات میں 500 نمرات میں سے 319 نمرات حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس انسان کو روک نہیں سکتی۔ کاٹش کی لٹ آنکھوں کی لٹ ہوگی۔ مبارک لگے مبارک۔ انشا مشتاق نے کہا کہ جب سے مجھے پیلٹ لگے ہیں تب سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور ان سارے چیلنجز کا سامنا بخوبی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2016 میں ہمارے گاؤں میں احتجاج ہو رہے تھے۔ اس دوران میں کھڑکی میں تھی، جو ہی میں نے کھڑکی کھولی تو وہاں سے میری آنکھوں میں پیلٹ لگے، جس کی وجہ سے میں نابینا ہو گئی۔ ایک سے پہلے میں نے رویا اور اس کے بعد میں بہت خوش ہو گئی کہ میرے ماں باپ نے بولا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، جو سائٹڈ پرسن ہے ان کو تو اتنی مارکس نہیں ہے جتنے آپ کو ہے، آپ کیوں روئے۔ مجھے لگا جو جیسے میں نے پیپرز کیا اس حساب سے مجھے بہت کم مارکس ہے۔ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے ہمت نہیں، میں نے ان کا فیس کیا چیلنجز کو، لیکن اپنی پڑھائی کنٹینیو کی۔
यहाँ पे 2016 में प्रोटेस्ट चल रहा था और इवनिंग में चल रहा था और मैं खिड़की पे थी, तो उसके बाद मैंने खिड़की खोली, उसके बाद मुझे पैलेट्स आ गए, स्ट्रे ऑफ पैलेट्स। बिल्कुल, जो पैलेट्स है वो इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आगे चलकर मुझे यही इरादा है कि मैं बैचलर्स करूँ प्लस आईएएस कोचिंग इंशाल्लाह। इंशा मुश्ताक ने बताया कि पैलेट इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और पैलेट की वजह से इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इंशा मुश्ताक ने बताया कि मुस्तकबिल में वो आईएएस इम्तहानात के लिए पढ़ाई करेंगी। इंशा के वालिद भी अपनी बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश हैं, क्योंकि जो इंशा थी, जो इसको 2016 में पलट आया, इसकी आंखों की रोशनी चली गई। उससे बाद इसकी पहली ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल करने, पढ़ाई की कोशिश था बहुत, इसको तालीम करने की कोशिश बहुत था। अलबत्ता जब इसको पलट आया सर 2016 में, उससे बाद भी हमने इसको कोशिश की कि जनाबी पढ़ाने की। उससे बाद आज तक मैट्रिक पास भी किया और टीटीसी पास भी किया। कल हम बहुत खुश हो गए और हमारे गांव सब रिश्तेदार, माई बहन तमाम सब खुश हो गए। इंशाल्लाह इसको हम आईएएस अफसर बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह। बहुत मुश्किलात का सामना पड़ा है, बहुत मुश्किलात हो गया, बहुत मुश्किल। इसके बावजूद भी हमने इसको कोशिश की कि इसने कहा नहीं जी मुझे पढ़ना, हमने इसको कोशिश की बहुत, इंशाल्लाह आए। इंसान अगर मुसम्मम इरादा करे, मेहनत करे और राह पर गामजन हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, परेशानियां हों, इंसान उसे बखुशी कबूल करते हुए आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिद्धू की इंशा ने। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है जिन्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, फिर भी उनके पास कोई हदफ नहीं है और ना ही वो कोई रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए शोपियां कश्मीर से शाहिद टाक की रिपोर्ट। उधर जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के लाजोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी पंडित नौजवान ने 12वीं जमात के इम्तहान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके अहल खाना के साथ साथ अपनी बिरादरी का नाम रोशन किया है। इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इसमें ज़िले पुलवामा के सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। ज़िले के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ज़िले पुलवामा के लाजुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी पंडित राजूल गंजू ने नॉन मेडिकल स्ट्रीम में 5वीं पोजीशन हासिल करके अपने अहल खाना का नाम रोशन किया है। इस सिलसिले में राजूल गंजू ने बात करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार बेहतर हो गया, जबकि बच्चों को चाहिए कि वो मेहनत करें। उन्होंने कहा कि वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों ने हर वक्त मेरा सपोर्ट किया, जिसकी बदौलत मैंने कामयाबी हासिल की। मेरे 492 मार्क्स आए थे, तो मैं साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहा था, JEE की। तो मैंने फुल ईयर उसी की प्रिपरेशन की थी। फिर मई में जब गवर्नमेंट ने बोला कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो फिर मैं वापस से कम्पिटिटिव पे शिफ्ट हो गया। मैंने फिर जनवरी फरवरी 2 महीने कम्प्लीटली बोर्ड्स को दिए हैं। पूरा जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ किया मैंने फुल 2 महीनों में। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के आदाद व शुमार के मुताबिक इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 82.44% उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। जुमा की सुबह सोशल मीडिया पर 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज ज़ाहिर होने की खबर फैली, जिसके बाद वादी के अतराफ अकनाफ में उम्मीदवार अपने अपने नताइज देखने के खातिर बोर्ड की वेबसाइट पर अपनी नज़रें लगाए बैठे थे। नताइज ज़ाहिर होने के साथ ही कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। पहले तो क्रेडिट ऊपर वाले को ही जाता है, उसके बाद जो भी टीचर जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया है उनको भी क्रेडिट जाता है, स्कूल को, और साथ साथ उसके बाद मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहे हैं। फिर मैसेज यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंटिन्यूसली आपको हार्ड वर्क करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि 12वीं जमात के नताइज के बाद आने वाले चंद दिनों में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज भी सामने ला रहा है। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं 12वीं के नताइज की। काकापुरा पुलवामा के 12वीं जमात के तलबा के एक ग्रुप ने हफ्ते को यहाँ
प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऐलान करदा नताइज में मुबैना तफाउत के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा के ग्रुप ने कहा कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काकापुरा के मुतादिद तलबा को केमिस्ट्री मजमून के प्रैक्टिकल पेपर में गैर हाजिर करार दिया गया है और बाद में उन्हें रीअपियर के तौर पर निशानजद किया गया है। हमने थ्योरी के पर्चे में अच्छे नंबर हासिल किए हैं और प्रैक्टिकल इख्तलाफात की वजह से पूरे मजमून को दोबारा ज़ाहिर के तौर पर दिखाया गया है, जिससे हम ज़हनी तौर पर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वाले तलबा का मज़ीद कहना था कि इस मामले पर अपने मुताल्लिक़ा स्कूल हुक्काम से मुलाकात की। उन्होंने हमें बताया कि हमारे अवार्ड्स जमा कराए हैं और बोर्ड हुक्काम से भी बात की है। एहतजाज करने वाले तलबा के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि ये तकनीकी ख़राबी थी और तलबा की गलती नहीं थी, इसके बावजूद हमें बहुत ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम अब BOSC हुक्काम से दरख्वास्त करते हैं कि वो गलती को जल्द अज दुरुस्त करें ताकि हमारे नताइज को अपडेट किया जा सके। तलबा ने कहा कि काकापुरा हायर सेकेंडरी के तकरीबन 30 तलबा और इसी गांव के 2 दीगर तलबा को इन मसाइल का सामना है। 12th का रिज़ल्ट आया था, उसमें जो केमिस्ट्री है उसमें हमें एक्सटर्नल कोई भी मार्क्स नहीं रखा गया है। 20 एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, हमें कुछ भी नहीं है। और मुझे अपना 95% मार्क्स आ रहे हैं, बट लेकिन वो मुझे नीचे रीअपियर दिखा रहा है। अब हम गए थे, मतलब हमारे स्कूल में जो है वो 30 है, 30 बच्चों को ऐसा हुआ है, स्किप हुआ है सारों का केमिस्ट्री एक्सटर्नल में। और पुलवामा में जो है, पुलवामा और 2 ये आते हैं गांव, उनमें भी नहीं आया है। 2 हायर सेकेंडरीज उनको भी नहीं है। 23 स्टूडेंट्स एक में है, दूसरे में भी 20 स्टूडेंट्स हैं। अब हम गए थे, जो पुलवामा हमारा है वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि ये टेक्निकल इशू है। अब हम चाहते हैं कि हमें विदिन 24 आवर्स ये जो इन्होंने गलती की है इसको रेक्टिफाई किए, क्योंकि जो कल रिजल्ट आया हम ही जानते हैं हमने कितनी ह्यूमिलेशन उठाई उसकी वजह से। कोई नहीं मानने को तैयार है। मेरे 95% है, लेकिन कोई नहीं मानता। वो बोलता आपको रीअपियर आया है नीचे, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री रीअपियर दिखा रहा है। हमारी बस यही डिमांड है कि जो गलती हुई है, चाहे किसी से भी हुई हो, वो रेक्टिफाई की जाए। विदिन 24 आवर्स हमारा नया रिजल्ट है। उन्होंने बोला पहले ये बेमुना का फॉल्ट है। बेमुना को उन्होंने कॉल की, उन्होंने बोला हमने दिल्ली में पेपर सबमिट किए थे, वहाँ पे कोई टेक्निकल गिल्च आ रहा है। जब इतने सारे पेपर्स को टेक्निकल गिल्च नहीं आया, हमारे पेपर्स को क्यों टेक्निकल गिल्च आ रहा है? 27 मार्च हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है फिज़िक्स पेपर, तब से हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ऊपर से मार्च सेशन किया, 1.5 साल हमें 12th में हुआ, इसके बाद भी हमारा रिज़ल्ट गलत निकाले हैं। और आप खुद देखिए, कोई टॉपर होगा तो उसे कोई बोलेगा तुम्हें रीअपियर आ रहा है, उसको क्या होगा? ये कितनी केयरलेसनेस है, कितनी लीनियंसी डाली है इन लोगों ने। बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। श्रीनगर के मेयर ने नई कॉलोनी बहरार में इजाफी क्वार्टर्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। श्रीनगर के मेयर जनाब जुनैद अजीम मत्तू ने मुअज़्ज़ज़ कॉरपोरेटर के साथ नई कॉलोनी बहरार श्रीनगर में नए आने वाले इजाफी क्वार्टर्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। मिस्टर मत्तू के साथ सीनियर अफसरान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तहसीलदार हज़रत बल और CMO श्रीनगर भी उनके हमराह थे। 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने आज ज़िले पुलवामा के नौजवानों के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों ने शिरकत की। ये तरबियती प्रोग्राम आज से शुरू हुआ। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में आज 55 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से ज़िले पुलवामा के हॉकी ग्राउंड में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले के कई बच्चों और बच्चियों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम नौजवानों को तंदुरुस्त बनाने और उनके जहनी तनाव को कम करने के मकसद से बनाया गया है। इस तरबियती प्रोग्राम के लिए MMA खिलाड़ी ओवैस याकूब को मंतखब किया गया था, जो MFN मुआहिदा जीतने वाले कश्मीर के पहले फ़ाइटर बने हैं। ओवैस याकूब ज़िले पुलवामा के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी हैं और वादी के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैट्रिक्स फ़ाइट नाइट से मुआहिदा किया हुआ है, और इस तरह से वो जम्मू कश्मीर के पहले फ़ाइटर बन गए हैं। MFN फ़िल्म प्रोड्यूसर और साबिक़ अदाकारा आयशा शराफ के ज़रिए कायम करदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्लेटफॉर्म है। इस ज़िम्मे में खिलाड़ी ने बात करते हुए कहा कि इस तरह के खेल मुकाबलों से नौजवानों में तंदुरुस्ती पैदा होगी, साथ ही वो बुरी आदतों से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज ज़िले के नौजवानों को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की फ़ायदियत और अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस खेल के साथ ही वो ख़ुद को महफूज रख सकेंगे, जबकि इस खेल से भी वो मुल्की सतह पर नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपना नाम पैदा कर सकते हैं।
इवेंट रखा बॉयज़ हायर सेकेंडरी पुलवामा में, ताकि हम स्टूडेंटों को बता सके कि ये MMA है क्या, इसमें ट्रेनिंग क्या है और इससे हमारे जो बॉडी को बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये पहला यूनिक इवेंट था डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ट्रेनिंग की, हमने हैंडबॉल खेला, हमने फ़िज़िकल ट्रेनिंग की, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। आज जो हमने ये यहाँ इवेंट की लॉन्जम मार्शल आर्ट एकेडमी की तरफ से हमने यहाँ पर एक इवेंट किया कोलैबोरेशन विद 55 RR। ये इवेंट 2 दिन चलेगी, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। यूथ उसको पता चल रहा है कि मार्शल आर्ट भी कुछ गेम है, मार्शल आर्ट में बहुत स्कोप है। तो आज हम यहाँ आए, हमने स्प्रिंट्स की लॉन्जन की तरफ से, बहुत सारे हमारा कोच जो है इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। क्या कि हमने एक इवेंट रखा बॉयज़। ज़िले पुलवामा के सीबीनात इलाके के लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शादी मर्ग के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। इलाके के लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर पर इल्ज़ाम लगाया कि जो हल्के के लोगों की जानिब से बाहमी दिलचस्पी का काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इस काम को करने से इनकार कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के दूर इफ्तादा इलाके सीबीनात एक ऐसा गाँव है जो ज़िला हेडकोार्टर से काफ़ी दूर है और मौसम सरमा के दौरान उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने कई साल कबल इलाके में एक तिब्बी सब सेंटर कायम किया ताकि इलाके के लोगों की सेहत की देखभाल इन्हीं के इलाके में हो। वहीं ये सब सेंटर आज तक एक निजी इमारत में चलाया जा रहा था जो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है, जबकि इस तिब्बी सब सेंटर के डॉक्टरों को भी तैनात किया गया था, लेकिन सब सेंटर में जगह ना होने की वजह से डॉक्टरों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया और लोगों के मसाइल का इजाला नहीं हो सका। महकमे देही तरक्की ने लोगों को जानकारी दी कि इस साल उनके हलके के लिए 23 लाख रुपए रखे गए हैं, जिनसे इलाके में तामीराती काम अंजाम दिए जाएंगे। ताहम ये काम इलाके की आवाम को मुंतखब करने के लिए है, जिसके बाद सभी लोगों ने इत्तेफाक़ी राय से इन पैसों से सब सेंटर के लिए एक अपनी नई इमारत तामीर करने की राय ज़ाहिर की, लेकिन उनके मुताबिक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने उनके ये काम करने की इजाज़त नहीं दी, जिसको लेकर इलाके के लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर शादी मर्ग के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज भी दर्ज किया। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि वो हल्के के मुंतखब किए गए पैसों को सब सेंटर तामीर के लिए इस्तेमाल करें ताकि इलाके के लोगों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम हो सके। 23 लाख रुपये सैंक्शन गमित यम जन पूरे गामन ये हस्पताल खतर मुंतखब कर्मित शहर पसंद अनासर यम जन यसान कोच ड्रेन यम जन जरूरत कि मस्ट वस हस्पताल खतर अत मज गह मुदाखलत कर खसूसन BDO साहब ग्राम सभा अगर यम रेत पत रेत करान रेत पुलान पेवान असे दिन अन कह उजरत कह मजूरी मगर दपान गामस गस कह सहूलियत इन गामन कोर मुंतखब अगर हसा 23 लाख अम सा बनान कमर 2-3 उस एस्टिमेट बन बे वरी यी बे वरी थवोस बेहन यम कमर 3 गछ बन तथ वो यह बिल्डिंग बन पब्लिक पार्क अस कर मुंतखब गामन दिमो ये अम खतर तो गो पतम रेजोल्यूशन अमे खतर बन नमन पोसन। गांदरबल के 2 मुलाजमीन को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में आला हुक्काम को गलत मालूमात देने के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल शुदा मुलाजमीन ने आला हुक्काम को ये कहकर गुमराह किया कि म्यूनसिपल कौंसिल गांदरबल अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। दरअसल ये हकीकत उस वक्त सामने आई जब डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ की एक टीम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट का दौरा किया। दौरे के दौरान ये पता चला कि मुलाजिमीन के सारे दावे गलत साबित हुए हैं और साथ ही ये भी पाया गया कि सामान को गैर हाजिर अमले की तरफ से छोड़ दिया गया था। इसको संगीन गफलत करार देते हुए 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है और इस मामले की तहक़ीक़ात ज़ेरे इल्तवा है। वो म्यूनसिपलिटी जो है हमारे घरों से निकालती है, लेकिन उसके बाद सड़कों पे ढेर होता है उसका, या बैंक्स पे ढेर होता है, बहुत सारी जगहों पे जो है हमारे जो कूड़े के ढेर पाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है उसको यहाँ पे हमने इनेकाद किया, उसको बना दिया, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़ाया है क्योंकि वो अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। तो हम जब वहाँ पे गए तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है इस वक्त तबाह है, ना वहाँ पे कोई गेट है ना कोई इंतज़ाम है, बिल्कुल वो सील्ड की ऐसी मशीन है जैसे लगाई थी, कोई फंक्शनल नहीं है। कहें कि हमारे घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है वो। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामुल्ला के सोपोर में आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सोपोर के मुख्तलिफ
ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن باغات کا جائزہ لیا۔ اس دوران ان کے ہمراہ محکمہ ہارٹیکلچر بارہمولہ سے وابستہ افسر شکیل احمد کے دیگر چھوٹے بڑے افسران بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر نے چوگل نرسری کا بھی دورہ کیا اور وہاں بھی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جو ہے اس سے جو فائدے ہیں بہت سارے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل آرچارڈنگ سسٹم ہم دیکھیں گے اس میں فروٹ آپ دیکھتے ہیں کتنے سالوں کے بعد آ جاتا ہے اور فروٹ پروڈکشن بھی کتنا ہوتا ہے۔ تو ہائی ڈینسٹی جو ہے یہ ہائی ڈینسٹی دو معنیوں میں ہے۔ ایک پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس آپ دیکھیں گے بہت کم ہے، اس وجہ سے بھی ہائی ڈینسٹی ہے۔ دوسرا جو فروٹ کراپ اس پہ نکلتا ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی ڈینسٹی کا ہوتا ہے۔ فروٹ کافی زیادہ ہوتا ہے کوانٹٹی میں، اور گریڈ بھی اس کا اے گریڈ پرسنٹیج جو دیکھیں گے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کافی فائدہ مند ہے اور بہت سارے لوگ جو ہمارے ڈسٹرکٹ سے وہ اویئرنیس کیمپس کرتے ہیں، وہ ایک تو اپنے آفیسز میں بھی لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں، بٹ ایکسٹینشن بہت ضروری ہے۔ یہ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور ادھر پہ فیلڈ میں لوگوں کو جا کے اویئرنیس کیمپس کر کے ان کو جانکاری دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا وہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے کسان سمپرک ابھیان چل رہا ہے ہر جو ہماری یو ٹی ہے ہر اس کے پنچایت میں، اور ہر ایک پنچایت میں ہر بلاک کے ہر ایک پنچایت۔ رواں سال 1 جولائی سے امرناتھ یاترا شروع ہونے والی ہے، جس کو لے کر انتظامیہ کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہیں بابا برفانی کے درشن کے لیے امرناتھ یاتریوں کے لیے ٹریک کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور چند نواری پہلگام سے گفا تک جانے والے راستے پر تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وہیں پہلگام کے لوگ خصوصاً گھوڑے بان ٹیکسی والے یاتریوں کے انتظار میں بے صبری سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ادھر سوشل ایکٹیوسٹ یوتھ لیڈر ایڈوکیٹ اماد میر نے کہا کہ کشمیریوں نے ہر وقت یاتریوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور ہر ایک سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے ہمیشہ پیش رہے۔ پہلگام کے لوگ جتنے بھی یاتری ہیں ان کے استقبال میں کھڑے ہیں، بالخصوص جو یہاں کے نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یاترا بڑے اچھے طریقے سے ہو، پرامن طریقے سے ہو، اور جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے یہاں کے پونی والا ہو گیا، ٹیکسی ایسوسی ایشن، شاپ کیپر، وینڈر، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب خوش ہیں اور بڑی بے صبری سے ان کے استقبال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایل جی صاحب نے ایک بہت ہی اچھا ہمارے لیے انکریجمنٹ کا کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو نوجوان ہیں، بالخصوص یہاں کے جو لوکلز ہیں، ہر سال ان کا یاترا میں کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو پہلی بار یہاں کے لوکل سٹیک ہولڈرز کو وہ ریکگنیشن ملی ہے، ان کے بارے میں کسی نے بات کی ہے۔ اگر آپ صفائی کرمچاری کی بات کریں گے وہ بھی خوش ہیں، جو یہاں کے لوکل این جی او چلاتے سول سوسائٹی کے نوجوان ہیں وہ بھی خوش ہیں، ملازمین ہیں وہ بھی دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اوور آل آپ دیکھیں گے لوگ یہاں یاتریوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہاسپٹیلٹی کا ٹریڈیشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دل بڑا کر کے سب لوگ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ یاتری یہاں کب آئیں گے، لنگر لگیں گے اس میں بھی مدد کریں گے، ان کے جو ریلیجیس افیئرز ہیں ان میں بھی مدد کریں گے۔ یہاں کے قصبہ ہندواڑہ کے بٹکوٹ کچوارا گاؤں میں سڑک کے بیچوں بیچ ٹریکٹر الٹ جانے سے ٹریکٹر پر سوار 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اگرچہ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر ضلع اسپتال ہندڑوا منتقل کیا گیا، جہاں زخمیوں کا تاب نہ لا کر وہ دم توڑ بیٹھا۔ ادھر ڈاکٹروں نے جاں بحق ہوئے نوجوان کی شناخت مبشر احمد رشی کے طور پر کی ہے۔ اگرچہ متوفی نوجوان کی خبر ان کے آبائی گاؤں شانت گنڈ پائن پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ ضلع کشتواڑ سے حجاج اکرام کا دوسرا قافلہ سفر محمود پر روانہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دینیشور یادو کے ساتھ ساتھ اوقاف اسلامیہ کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر حسین وانی سمیت مرکزی جامع مسجد کے امام مولانا فاروق حسین کچلو نے ہری جھنڈی دکھا کر عازمین کو سفر حج پر روانہ کیا۔ بزم شعر و ادب شمالی کشمیر کی جانب سے 2 منزل کالج سوپور میں یک روزہ اعزازی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اے ڈی سی سوپور مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اور اس دوران قلمکار، سائنٹسٹ، ادیب، شاعر، صحافی، انجینئروں، پروفیسروں کے ساتھ ساتھ باقی عزت شہریوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ دراصل بزم شعر و ادب ایک ایسی تنظیم ہے جو اردو اور کشمیری زبان کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ وادی کے مشہور و معروف قلمکار سے وابستہ۔ اس دوران
SSP सोपोर शब्बीर अहमद नवाब के साथ साथ म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के चेयरमैन तौसीफ रैना के साथ कॉलेज के बच्चों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हमारी कश्मीर में जो आज प्रोग्राम का एजाजी प्रोग्राम का अटैचमेंट किया था आज, इसका मकसद यही है कि जो ये नया हमारे पौध जो है, नया पौध जो है, वो कश्मीरी ज़ुबान की तरफ राग़िब हो जाए और वो कश्मीरी ज़ुबान को समझें। ये जो कि हमारी विरासत है, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं, इसलिए हम इदारों में जाते हैं, ऐसे सेमिनार करते हैं। लिफ्ट ली है, जिन्हें काफ़ी मेहनत की है, उनको अपने इनामात के साथ उन्हें नवाजा है। एंड इसमें हमें भी बुलाया गया था। हमने भी कोशिश ये की कि इनकी हौसला अफजाई करें एंड इनको ये भी फैसिलिटेट करें जहाँ इनको कोई दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, वी आर एट देयर बैक सो दैट इस नज़म को भी आगे ले जाएं। जैसे बाकी शहरों में काफ़ी आगे जा रहा है, हमारा सोपोर को जो नॉर्थ एरिया है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं जमात के नताइज का किया ऐलान, 65% रहा नतीजा। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मित्तू ने नई कॉलोनी बहरार में इजाफी क्वार्टर्स की तामीर का रखा संग बुनियाद। पचपन राष्ट्रीय राइफल्स ने पुलवामा के नौजवानों के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का किया आगाज। नौजवानों की बेहतर सेहत और जहनी तनाव को दूर करने के लिए इक़दाम। और ख़राब मौसम के सबब कुकरनाग में सियाहती सरगर्मियां मुतासिर, सियाहत से जुड़ा रोजगार मुतासिर, ताजिरों में तशवीश की लहर। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।